Okay, so my point is that in such a time, it is important to have this kind of a session. Okay, so let us begin today's class, and it is about the DFD. Please, I'm sharing my PPT, so let us revise one more time that what are we trying to understand and how the DFD has been designed. See, my dear students, please keep your notebooks near you, pencil, pen, notebook near you. You have to draw with this. And one more thing, I will be giving you one demo of a tool which you can use. And with the help of that tool, you can again create lots of diagrams. And I'll be introducing you to different type of diagrams which can be used in your project reports. And if you use these diagrams in your documentation and or in presentation, then it will be very impressive. So your presentations will very look very impressive. Another thing is that you'll be easily be able to depict the whole project properly, and definitely you will get the appreciation of your what you call of your faculty members, right? So I'm sharing, just hold on, bear with me. Okay. Please tell me if my screen is visible to all of you. Is it visible? Is it visible to all of No, you? ma'am. No, No, ma'am. ma'am. Oh, what's wrong? Just a minute. Now is it visible? No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so let's see how the DFD has been designed and how you should draw DFDs and what are the various symbols. I'm repeating this purposely because ultimately, without again providing the pictorial representation of the whole project, no planning is, quick. If you want to make a quick planning, which is again is easily understandable before actually moving to the project management coding and design part, it is very important, right? So as we have discussed in the previous classes that we have different levels in DFDs. What is the full form of DFD? Data flow diagram. That means in the data flow diagrams, we are trying to express that how the data is flowing from one process to the other process and what all processes are there, right? Now, as you can see one picture here where I have given you one example where railway reservation system is being depicted, and in this system as you can see there are two boxes. Okay, now these two boxes we use a particular term for these boxes, it's coming, but I think you can understand that these are the entities. Passenger is the entity, so the passengers do certain things like they do the cancellation of the tickets, they do the reservation of the tickets, and what else do they want? They want their information of their tickets. So these are the things that the customers or the passengers expect from the railway reservation system. So that means we have to see that
one important entity is the passenger or the end user who will be using the railway reservation system. Now, just talk about admin. So, admin part, if we see, then admin is the one who is responsible for allocating reservations and uh, and of course for the cancellation information also. And admin possess the passenger information also. Plus, if we talk about the different type of trains, so up down train info is also there with the admin, right? Now, this type of a diagram which you see where there is a direct flow of the information is depicted. This is the zero level DFT. Is this thing clear? Is this thing clear? Please draw this. Please draw this in your notebook. Okay. Now, let us look at this particular DFD where we are actually having student result management, right? Now, see, student result management is a system wherein if you have to devise that system, if you have to make ready this system, then the kind of information which you will मैम कुछ possess दिख नहीं and hello, ये PPT visible नहीं है? दिख रहा फिर किसको नहीं दिख रहा है भाई? रुक जाइए, दोबारा से शेयर करती हूँ मैं। ऐसा क्यों होता है इस क्लास में कि आधे बच्चों को दिखाई देता है, आधे बच्चों को नहीं दिखाई देता, ऐसा क्यों है? नेटवर्क इशू रहता है मैम किसी को, इसलिए। ये देखिए, आप बताइएगा अब आपको विजिबल है? ये देखिए, ओके। स्टूडेंट रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम है ये आपका। और स्टूडेंट रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम में अगर आप देख पा रहे हैं तो आप देखें कि जो ये एरोज हैं, ये सभी एरोज कहाँ आ रहे हैं? इस सिस्टम की तरफ आ रहे हैं। और इस सिस्टम से भी कुछ एरोज बाहर की तरफ निकल रहे हैं। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर जो है वो क्या कर रहा है? वो इंफॉर्मेशन इनपुट कर रहा है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन इनपुट कर रहा है, सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन एंटर कर रहा है, मार्क्स का जो भी इंफॉर्मेशन है वो एंटर किया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या है? आपके अकाउंट्स को मेंटेन करना, आपके एसआईडीज, आपके अकाउंट्स, आपके एनरोलमेंट नंबर, आपके रिजल्ट्स, जो आपके प्रीवियस रिजल्ट्स थे उनका भी लेखा जोखा रखना, ये काम है। तो एडमिनिस्ट्रेटर के पास में यूजर अकाउंट है जो कि यूजर अकाउंट को मेंटेन करते हैं। अगला अगर आप देखें, ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है? स्टूडेंट रिजल्ट मैनेजमेंट में जाती है। और यहाँ से इंफॉर्मेशन किस तरह से निकलती है? जब ये सारी इंफॉर्मेशन एक सिस्टम के पास आती है कि क्या सब्जेक्ट है, क्या सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, क्या स्टूडेंट का नेम है, नंबर है, तो और ये जो इंफॉर्मेशन बाहर जा रही है वो इंफॉर्मेशन क्या जा रही है? स्टूडेंट रिपोर्ट्स जनरेट हो रही है, मार्कशीट जनरेट हो रही हैं, और स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट जनरेट हो रही है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो जनरेट हो रही है। अब इस तरीके का जो मैनेजमेंट है, रिजल्ट मैनेजमेंट है, ये किस प्रकार का होगा? जीरो लेवल, लेवल जीरो डीएफडी रिजल्ट मैनेजमेंट। प्लीज इसको नोट कर लें, इसको प्लीज नोट कर लें सभी लोग। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, जल्दी से नोट कर लें। डन? नो मैम, मैम 1 मिनट। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इससे नोट भी कर सकते हैं। यस मैम, डन। डन?
अब आप, यस मैम। हाँ, अब देखिए, अभी जो आपने डायग्राम देखा, इस डायग्राम को कहते हैं कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस डायग्राम में आपको ये पता चलता है कि एक सिस्टम है, और वो जो सिस्टम है उसमें आप इनपुट दे रहे हैं, और उस सिस्टम से एक आउटपुट जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके का सिस्टम आप यहाँ पे दिखा रहे हैं, लेकिन इस सिस्टम में क्या हो रहा है अंदर, इसमें क्या क्या चीजें, किस तरह से ये रिपोर्ट जनरेट हो रहा है, ये सब कुछ इसमें नहीं दिखाया गया है। तो हम इसे कह सकते हैं कि जो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है, वो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम क्या है, वो एक एब्स्ट्रैक्शन व्यू है। क्या है? एब्स्ट्रैक्शन व्यू है, या कह सकते हैं कि एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू है, जिसमें आप क्या करते हैं कि जिसमें आपको ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, तो ये आपको Yes. क्या शो करता है? सिंगल प्रोसेस शो कर रहा है। आपने लिखा कि डेटा एंट्री की जाएगी। आप ऊपर वाला डायग्राम इसको बहुत ध्यान से समझे। ये देखिए, आपने बताया कि डेटा एंट्री ऑपरेटर डेटा एंट्री करेंगे, तो इसमें आपने लिखा स्टूडेंट इन्फो, मगर इसमें आपने ये नहीं बताया कि स्टूडेंट का नाम होगा, उसका रोल नंबर होगा, उसका एनरोलमेंट नंबर होगा, या क्या वो क्राइटेरिया होगा जिसको बेस करके आप ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट इंफॉर्मेशन एंटर की जा रही है। स्टूडेंट की कितनी इंफॉर्मेशन एंटर करी गई, क्या आपको इससे पता चलता है? No, ma'am. तो दैट मीन्स एक हमने सिर्फ एक रफ आइडिया दे दिया कि हम ये जो प्रोसेस होगा उसमें क्या किया जा रहा है, ये इंफॉर्मेशन इनपुट की जा रही है, मगर क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है ये नहीं बताया गया। दूसरी बात, स्टूडेंट इन्फो रिपोर्ट जनरेटेड, ये क्या रिपोर्ट है पता नहीं। मार्कशीट, मार्कशीट आप समझ सकते हैं कि हाँ चलो मार्क्स जनरेट हो रहे हैं, एक मार्कशीट जनरेट हो रही है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स होंगे, मगर फिर भी उसका फॉर्मेट क्या होगा वो आपको नहीं पता, उसमें फील्ड कौन कौन से होंगे ये आपको नहीं पता। स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट, अब स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट होगी, लेकिन अगेन उसके फील्ड्स क्या क्या होंगे ये आपको नहीं पता। तो अगर आप देखें तो इस तरीके का डायग्राम कहलाता है कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। ठीक है, क्या मेरी बात सबको समझ में आई? Yes, ma'am. हम्म, अब आप देखें कॉन्टेक्स्ट डायग्राम की चलिए जब हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये पूरे सिस्टम को आप एक इस तरह से रिप्रेजेंट करता है जैसे कि एक सिस्टम एक सिंगल बबल हो, और उसमें कुछ इनपुट्स हो और कुछ आउटपुट हो। जैसे मैं आपको कहूंगी कि आप आईपीओ साइकिल बनाते हैं, तो उसमें आप क्या लिखते हैं? इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। व्हाट इज बीन इनपुट, यू डोंट नो। व्हाट इज बीन प्रोसेस्ड, यू डोंट नो। what output you will be receiving, you don't know. But if you just represent the whole system with three boxes, and you say that these three boxes depict how computer translates or how computer works. So because computer follows IPO cycle, input, process and output, right? So these are called context diagram. किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा हो तो अभी प्लीज मुझे रोकें और मुझसे पूछें। सबको कॉन्टेक्स्ट डायग्राम समझ में आ गया? यस? मैम, हाँ जी, डायग्राम बनाना था मैम, तो वो क्वेश्चन दी थी वो वाला, उसमें कैसे डायग्राम बनेगा? मैंने उसमें भी आपको 0 लेवल डीएफडी ही दी थी, उसमें भी आपको इसी तरह से बनाना है। ये देखिए क्वेश्चन क्या था, आप क्वेश्चन पढ़ें एक बार। A supermarket uses a point of sale हम्म terminal to keep track of the goods that in stock and to produce bills for customers whenever an item is sold. हम्म
The produce code of the item is read by a barcode scanner. The price हम्म and name of the हम्म product is checked in the supermarket's हम्म stack database, and this information is printed on the customer's हम्म repeated. It also updates the product's record in the stack file to indicate the product has been sold. ओके Yes, ma'am. ड्रॉ करना था कॉन्टेक्स्ट हाँ, डायग्राम कॉन्टेक्स्ट इंफॉर्मेशन के डायग्राम। साथ। अब मैं आपको इतनी देर से यही बता रही हूँ कि अगर हमने एक डायग्राम बनाना है, लेट अस सी, हमने कहा कि पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल है ना, और पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पे हमने, आप इसको इस तरह से समझिए, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल हमें बनाना है, तो हमें जो हमारा कहना चाहिए जो सिस्टम है, उस सिस्टम का नाम हमें क्या रखना पड़ेगा? पीओएस। जैसे यहाँ पे आपने लिखा ना स्टूडेंट रिजल्ट मैनेजमेंट, ये लिखा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? स्टूडेंट रिजल्ट मैनेजमेंट की जगह पे क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल हो जाएगा। ठीक है। और पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल के बाद अभी आपने कहा कि जो यूजर है उसको आपको क्या देनी है? आपको उसको प्रोड्यूस करनी है रिसीट, और साथ ही साथ में जो डेटाबेस है उसमें भी अपडेट होना है। इसका मतलब जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है वो प्रोड्यूस क्या हो रहा है? वो हो रहा है कस्टमर के लिए एक बिल प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि एक रिसीट प्रोड्यूस हो रही है जिसमें उन्होंने जो भी सामान लिया है उसका बिल प्रिंट हो रहा है। तो आप यहाँ पे जैसे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जनरेट हो रही है, वैसे यहाँ पे कस्टमर बिल इंफॉर्मेशन जनरेटेड और कस्टमर बिल जनरेटेड कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? आपको पूरी जानकारी देने की जरूरत नहीं है। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में जैसे जैसे लिखा हुआ है आपको वैसे वैसे लिख करके फ्लो इंफॉर्मेशन का डिपिक्ट करना है इसी तरह से। मैं इसीलिए बार बार आपको बता रही हूँ कि जो काम आपको दिया था मैंने वो बहुत ही सिंपल था, कि जितने भी प्रोसेस आपके हैं उनको आप इनपुट में कीजिए, जितना भी आउटपुट में आपको दिखाई दे रहा है कि ये आउटपुट्स प्रोड्यूस होंगे उनको एरो लगा करके आउटपुट में प्रोड्यूस करिए। आपका काम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे बेसिक डायग्राम हुआ वो आपका कॉन्टेक्स्ट डायग्राम हुआ, जिसको हम जीरो लेवल डीएफडी भी कहते हैं, जिसमें हमें सिर्फ ये बताना होता है कि कितने इनपुट्स हम लोग इसमें दे रहे हैं और क्या हमारे आउटपुट्स होंगे और इनपुट्स कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। तो ये इस डायग्राम में बिल्कुल क्लियर है। क्यों आदित्य, क्लियर है कि नहीं है? Yes, ma'am. ये जो डायग्राम है इसमें क्या चीज आपको समझ नहीं आ रही है? ये जो डायग्राम अभी आपके सामने है, अगर मान लीजिए इसमें 3-4 इनपुट हैं तो डेफिनेटली भाई 3-4 एरोज आ रहे हैं, लेकिन अगर आप प्रीवियस वाला डायग्राम देखेंगे तो प्रीवियस वाले डायग्राम में दो एंटिटीज हैं, पैसेंजर और एडमिन, जो कि इसको यूज कर रहे हैं। तो ये जीरो लेवल डीएफडीज की ऐसे बनेगी। हमने इसमें कुछ कहा ही नहीं कि क्या क्या कैंसलेशन का प्रोसेस हो रहा है या रिजर्वेशन का प्रोसेस हो रहा है। हमने कहा कि ये प्रोसेस हो रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं। अप डाउन ट्रेन का हम देखें तो हम कहेंगे कि अप डाउन ट्रेन का इंफॉर्मेशन है, पर क्या इंफॉर्मेशन मांगा जा रहा है वो नहीं कंसर्न है। ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम हम इस तरह से बनाएंगे। तो मेरे ख्याल अभी नेहा आपके क्वेश्चन का आंसर अभी अभी मिल जाएगा। ठीक है। मैं अभी आपको काफी सारी चीजें बताने वाली हूँ आज, तो वेट। हाँ, ओके। नाउ दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है डेटा फ्लो डायग्राम में, वो ये ध्यान रखनी है कि डेटा फ्लो डायग्राम की बैलेंसिंग होना चाहिए। बैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि जितने इनकमिंग फ्लोज होंगे, इनकमिंग इंफॉर्मेशन फ्लो जो भी आपका हो रहा है, जो कि प्रोसेस में आ रहा है, एंड ऑल द आउटगोइंग फ्लो फ्रॉम अ प्रोसेस शुड बी प्रिजर्व्ड एट द नेक्स्ट लेवल ऑफ डिकम्पोजिशन। यानी जितने भी आप इनपुट्स ले रहे हैं उतने आपके क्या होने चाहिए? आपके आउटपुट्स भी होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप एक सिस्टम के अंदर इनपुट्स तो आ रहे हैं लेकिन वो सिस्टम कोई आउटपुट जनरेट नहीं कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ओके। अब आप आ जाइए नोटेशन पे। नोटेशन के लिए मैंने आपसे कहा था कि एक्सटर्नल एंटिटी, हम अभी जैसे हमने यूज किया पैसेंजर, अभी हमने यूज किया एडमिन। तो एक्सटर्नल एंटिटी जो डीएफडी डायग्राम्स में होगी जब हम बनाएंगे, इट कैन बी अ ह्यूमन, इट कैन बी अ सब सिस्टम। भाई ये हो सकता है कि किसी सब सिस्टम का आपका सिस्टम पार्ट हो, तो उसे उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं या हम ये बता सकते हैं कि उस सिस्टम से
ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोसेस होने के लिए हमारे सिस्टम में आ रहा है। मगर इन बोथ द केसेस एक्सटर्नल एंटिटी ही उसे कहा जाएगा, चाहे वो ह्यूमन हो और चाहे वो सिस्टम हो, एंड इट इज वेयर सर्टेन डेटा कम्स फ्रॉम एंड गोज टू। तो एक्सटर्नल जो भी है system, it is external to the system, and in terms of business process, for this reason people used to draw external entities on the edge of a diagram। ठीक है, इसीलिए एक्सटर्नल्स को डायग्राम के एज पे बनाया जाता है, क्योंकि वो एक्सटर्नल एंटिटीज हैं, वो ह्यूमंस भी हो सकते हैं और वो सब सिस्टम भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोसेस की। प्रोसेस का जो बॉक्स आप बनाएंगे वो किस तरह से बनाएंगे? एक रेक्टेंगुलर कर्व्ड बॉक्स बनाएंगे, ये आपको पता है। तो एक रेक्टेंगुलर कर्व्ड बॉक्स बनाएंगे। तो प्रोसेस क्या है? इट इज द बिजनेस एक्टिविटी और फंक्शन where the manipulation and transformation of the data takes place, and the process can be decomposed to a finer level of details for representing how the data is being processed within the process। तो प्रोसेस में हमें ये बताना है, लेकिन ये जीरो लेवल पे नहीं आएगा। जीरो लेवल पे तो सिर्फ हमें सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन देना है कि ये प्रोसेस है और ये इसका आउटकम है। लेकिन जैसे जैसे हम इसे डिकम्पोज करते जाएंगे, जैसे जैसे हम इसे और इलेबोरेट करते जाएंगे और इसको अच्छे से समझते जाएंगे, तो ये जो लेवल्स है हमारे, ये चेंज होते जाएंगे। तो जीरो लेवल पे ये बात समझने वाली है कि जीरो लेवल पे हमें कोई इंटरनल इंफॉर्मेशन नहीं देनी। लेवल 1 लेवल 2 जैसे आएगा वैसे मैं आपको बताते जाऊंगी। अब आप बात कर लेते हैं डेटा स्टोर की। डेटा स्टोर क्या है? तो डेटा स्टोर को रिप्रेजेंट किया जाता है या डेटा स्टोर कहा जाता है उस स्टोरेज यूनिट को या उस स्टोरेज फाइल को, इट कैन बी ए फाइल ऑल्सो, जहां पे आप अपने डेटा को स्टोर करेंगे, वो डेटा स्टोर है। तो इट इज द स्टोरेज ऑफ परसिस्टेंट डेटा। परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? वो डेटा जो एग्जिस्ट करे, वो डेटा जो सालों तक रहे। परसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? कि जो हमेशा रहता है, जो परसिस्ट करता है। तो ऐसा डेटा डेटा स्टोर में, परसिस्टेंट डेटा जो रहे, टेम्पररी नहीं। ऐसा नहीं कि आपने डेटा रखा और उड़ गया, ठीक है, तो इस तरीके का डेटा नहीं। तो परसिस्टेंट डेटा जो है वो जो है प्रोड्यूस करा जाता है। अब इसमें आप डेटाबेस टेबल्स भी ले सकते हो, इसमें आपके पास में मेंबरशिप फॉर्म्स भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है इसके अंदर आती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे डेटा फ्लोज का। डेटा फ्लोज आपने देखा कि आप एरो से डिपिक्ट करते हो। तो डेटा फ्लो किससे भी हम दिखाएंगे? एरो से। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन with its direction presented by arrowhead that shows the at the end of the flow connector। तो अगर हम लेफ्ट जा रहे हैं तो हमारा एरो लेफ्ट की तरफ होगा, राइट जा रहे हैं तो हमारा एरो राइट की तरफ होगा। इन एंड आउट एरोज आप बखूबी समझते हैं, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो डेटा फ्लोज हम उससे डिपिक्ट करते हैं, ठीक है। दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। अब मैं आपको, हाँ, अब मैं आपको फाइनली बताती हूँ कि आप इसको बनाएंगे कैसे, यानी आप इसे इसे किस तरह से करेंगे अगर आप कंप्यूटर पे करना चाहें तो। एक मिनट रुकिएगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक टैब, और आप सब लोग इसे नोट कर लें अपने उसमें। एक मिनट, इसका नाम है विजुअल पैराडिम। क्या नाम है इसका? विजुअल पैराडिम। विजुअल पैराडिम पे जाएं और इसको इस तरह से ओपन करें। पहले आप मेरा डेमो देख लें, उसके बाद आप अपने इस क्लास के बाद आप अपने आप से कर सकते हैं, ठीक है। ये जो पूरा इंटरफेस है, दिस इज द इंटरफेस ऑफ विजुअल पैराडिम। नाउ सी, हियर इज द टूल किट, यू कैन गो इनटू न्यू, आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं न्यू। यहाँ पे ये आपको पूछेगा चार्ट बनाना है, इन्फो चार्ट बनाना है, डायग्राम बनाना है, फॉर्म बनाना है, क्या बनाना है आपको। अगर हमने बोला चार्ट, तो ये आपको इतना सब सजेस्ट करेगा कि आप किस तरीके का चार्ट बनाना चाहते हैं। क्या आप ऐसा चार्ट बनाना चाहते हैं, 360 पंच कार्ड बनाना चाहते हैं, बॉक्स प्लॉट करना चाहते हैं, बबल चार्ट चाहते हैं?
अब आप देखिए कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं और कितने खूबसूरत हैं विद ऑल द कलर्स। अगर आप कोई पर्टिकुलर मैप या कोई इस तरीके का चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। ये देखिए, इसमें आप जिस तरीके का भी आप बनाना चाहते हैं उस तरीके का ग्राफ यहाँ से आप बना सकते हैं। ये चीज समझ में आ गई? तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और जैसे आपने चार्ट पहले बनाया है उसी तरह से इसमें चार्ट हम बना सकते हैं। ये देखिए बहुत सारे इसमें एरिया चार्ट है। ये देखिए, ये देखिए एरिया चार्ट में भी ये देखिए कितने सारे एरिया चार्ट्स हैं। आपको इतना एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आप इस तरह से इसको डिपिक्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छा पिक्चर लगा सकते हैं यहाँ पे। काफी कुछ इंटरेक्टिव कर सकते हैं। ये देखिए बॉक्स प्लॉट को देखिए, ये बॉक्स प्लॉट, ये सब चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपके प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, क्योंकि जो प्रोजेक्ट आप करेंगे उसकी डॉक्यूमेंटेशन में ये सारी चीजें बड़ी काम आती हैं और आपके प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन में भी बहुत सारी काम आती है। मेरी बात समझ आ रही है ना आपको? यहाँ आप लेफ्ट हैंड साइड में लिख भी पाएंगे अगर आपको कुछ करना है। अब करना क्या है, मान लीजिए कि मैंने ये वाला सिलेक्ट करा। देखिए मैं ये वाला सिलेक्ट कर रही हूँ। अब मैंने सिलेक्ट किया, ये सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। इसमें आपको कुछ भी डाउनलोड नहीं करना, आप ऑनलाइन ही जाकर के ये सारी चीजें प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ये देखिए, ये थोड़ा, हाँ अब देखिए, ये देखिए अब आपके लिए ये विजुअल पैराडिम ऑनलाइन डिजाइन जो है आपके ऑनलाइन ड्राइंग टूल ये प्रिपेयर कर रहा है और ये आपके लिए क्रिएट कर रहा है। मैम ये स्टक हो गई देखिए, मैम वो। नहीं नहीं, आ गया आ गया, बॉक्स प्लॉट क्रिएट हो रहा है। अब नजर आ रहा है आपको? हेलो आदित्य, विजिबल है? नो मैम वो, मैम वहीं रुक गई मैम स्लाइड, ये हम्म, वहीं रुक गई। मुझे तो दिख रहा है। जस्ट अ मिनट, दोबारा से करती हूँ। अच्छा, अगेन आई विल डू इट फिट। तो ये हमारा विजुअल पैराडिम, नाउ आई थिंक इट इज विजिबल। ठीक है, इसको हमने सिलेक्ट करा। अभी दिख रहा है आपको? जस्ट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा कुछ डिफरेंट तरीके से करती हूँ करके। टॉप प्रेजेंटिंग, अब आप देखिएगा एंटायर स्क्रीन मैं आपको कर देती हूँ, तब फिर ये ठीक से चलेगा। स्क्रीन, अब आप देखिए, अभी विजिबल है? यस मैम। ठीक है, अब आप देखिए, Yes, ये जो यहाँ पे ये लिखा है ना लोरम एप्सम डॉलर समथिंग, ये यहाँ पे आप अपना जो भी लिखना चाहते हैं
इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं वो यहाँ लिख सकते हैं। रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे भी आप उसके बारे में कि किसका एक्सपेरिमेंट है, किसका रिजल्ट है, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह से आप यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। ये आपके बॉक्स प्लॉट हो गए, इसमें आप बहुत कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप इस पे आ जाइए विजुअल पैराडिग्म पे। ये देखिए, मे बी माई इंटरनेट इज अ बिट स्लो टुडे, तो ये इतना अच्छा से नहीं दिख रहा है, पर आप इसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बहुत सारे डायग्राम्स आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। अब दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रही थी, लेट इट, सो यू हैव सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल। अनदर थिंग इज, यहाँ पे आप न्यू में जाइए, न्यू में जाके आप जाइए डायग्राम्स पे। ये देखिए डायग्राम्स पे, अब आपको, अब ये रिफ्रेश होगा, जरा 2 मिनट लगेगा। हाँ, अब यहाँ देखिए आपको कितने सारे डायग्राम्स दिख रहे हैं, देख पा रहे हैं आप? ये फ्लो चार्ट है, एक्टिविटी डायग्राम है, एफिनिटी डायग्राम है, देन सी दिस इज, सी दिस इज अगेन दी हायरार्कियल डायग्राम है जो आपको मिल रहा है। तो यहाँ बहुत सारे डायग्राम्स आपको मिल रहे हैं। आपके लिए कितना इजी है कि आप कोई भी एक डायग्राम चूज कर लीजिए। इवन द फ्लो चार्ट्स आर देयर, क्लस्टर डायग्राम है, बिजनेस प्रोसेस डायग्राम है, कॉन्सेप्ट डायग्राम है, यस नो काइंड ऑफ अ थिंग। ये सारी चीजें आप अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में व्हाइल यू आर डूइंग द प्रोजेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। कॉम्पिटिटर एनालिसिस है, ये देखिए ये बड़े काम की चीज है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। कंपोनेंट डायग्राम जो कि आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। देन डिफेक्ट कंसंट्रेशन डायग्राम है विद अ न्यू स्टाइल दैट यू कैन डू। देन डिप्लॉयमेंट डायग्राम्स हैं दैट यू कैन डू। देन फॉल्ट ट्री एनालिसिस है, फैमिली ट्री है, ईव्स ड्रॉपिंग क्लाउड है। यहाँ पे तमाम इतने सारे डायग्राम्स हैं कि आपको जो भी चूज करना है आप यहाँ से इजीली चूज कर सकते हैं। और वेन डायग्राम भी है यहाँ पे, स्वॉट एनालिसिस आप कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी एनालिसिस कर सकते हैं। तो मेरे कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपको जो भी डायग्राम डिजाइन करना है नया, वो आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। अब आप, हम आते हैं इन्फो चार्ट्स पे। ये देखिए, ये है इसमें इन्फो चार्ट्स। आप जिस भी एरिया को आप केटर कर रहे हैं आपका प्रोजेक्ट, आप उसको क्लिक कर सकते हैं। जैसे ये देखिए लेबोरेटरी, अब इस लेबोरेटरी में आपको ये सारी चीजें शायद आपको अवेलेबल चाहिएंगी अपनी प्रेजेंटेशन में, तो आप ये सारा का सारा यहाँ से एज इट इज यूज कर सकते हैं। इजंट इट वंडरफुल कि आपको ऑलरेडी थीम्स रेडी मिल रही हैं, सिर्फ आपको इसमें कुछ चीजें चेंज करनी होंगी और आपका काम हो जाएगा। लेट अस मूव ऑन टू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में एनर्जी एनर्जी एफिशिएंसी अगर आप देखें तो इसमें भी आपको सारी चीजें तैयार मिल रही हैं। तो इसी तरह से आपको अपने लिए कोई भी टूल चूज करना है प्रोजेक्ट के लिए जिसमें आप ये ड्रॉ कर पाए। मैं आपको और भी बताऊंगी, एक क्रिएटिवली करके एक टूल है जिसपे भी आप अपने डीएफडीज को डिजाइन कर सकते हैं। मतलब हाथ से बनाने की जरूरत नहीं है, इन टूल को यूज करिए और बहुत ही अच्छे से सुंदर से डीएफडीज आप बना सकते हैं, बिना किसी एरर के, बिना किसी ओवर राइटिंग के आप इसको बना सकते हैं। पहले चाहे पेपर पे बना लें और उसके बाद फिर आप जो है इनमें बना सकते हैं। ये बात समझ आ गई? सब लोग इसको ट्राई करेंगे? एक विजुअल पैराडिम मैंने बनाया, हाँ, और दूसरा क्रिएटिवली, नाम लिख लीजिए, क्रिएटिवली है, वो भी एक आपका टूल है, एक प्लेटफॉर्म है जिसपे जाके आप ये डायग्राम्स को क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा टाइम जरूर लगता है, थोड़ा एफर्ट जरूर लगता है, लेकिन एक्चुअली आपका बड़े ही सुंदर से डायग्राम्स आपके रेडी हो जाते हैं। तो जीरो लेवल कॉन्टेक्स्ट डायग्राम के लिए मेरे ख्याल से मैं इससे अच्छा ऑप्शन आपको नहीं बता सकती हूँ, जिसमें आप बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से डिपिक्ट कर सकते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट है जिसपे आपने डीएफडी बनाया है। जैसे अभी नेहा ने कहा कि मुझे पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल बनाना है, तो सुपरमार्केट का अगर आपको कुछ भी इंटरफेस चाहिए या आपको कुछ डायग्राम्स चाहिए तो आप आराम से कर सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप ये सारी चीजों को
यूज कर सकते हैं। ये देखिए 80%, 20%, या आप दिखा सकते हैं, कंपैरिजंस कर सकते हैं। अब यहाँ पे वो सारे चेंजेस आप कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, यानी इसमें आप कोई भी बैकग्राउंड लगा दीजिए, कोई भी फोटो लगा दीजिए, आप अपने हिसाब से इसको किसी भी तरह से एडिट कर सकते हैं। जो भी कुछ यहाँ पे दिया गया है ये सब एडिटेबल है, ये सब कुछ एडिटेबल है। तो आप अपने हिसाब से एडिट कर लीजिए और बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंटेशन आपकी हो, और वो आप बनाइए और उन पे काम करिए। ठीक है, समझ आ गया? चलिए अब इसमें हम देखते हैं कि फाइल में और कौन कौन से ऑप्शंस है। फाइल में वी हैव ओपन, सी, फाइल ओपन फ्रॉम एंड ओपन रीसेंट, save as, make a copy, import from. Now if you have already some file or some design तो import भी आपका इससे हो जाएगा, डिवाइस से भी import हो जाएगा, एक्सपोर्ट भी हो जाएगा जेपीईजी, पीएनजी, पीडीएफ फॉर्मेट में। जिस भी फॉर्मेट में आप चाहते हैं उस फॉर्मेट में इसको आप एक्सपोर्ट कर लीजिए और अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का पार्ट बनाइए, इसको अपने प्रोजेक्ट का पार्ट इसमें बना सकते हैं। अगर एम्बेड करना चाहते हैं तो आप इसको एम्बेड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी फैसिलिटीज इसके साथ अवेलेबल है। अब दोबारा से हम देखिए इस पे चलते हैं, फाइल, एडिट। एडिट में तो आप जानते हैं एडिटेबल ऑप्शंस हैं जो भी अवेलेबल हैं। व्यू में लेयर्स हैं, आप लेयर्स देख सकते हैं, टूल्स आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, आउटलाइन और लेयर्स। तो ये राइट हैंड साइड पे जो आप देख रहे हैं ना, राइट हैंड साइड पे यू हैव फॉर्मेट पैनल, you have this fine, then you have outline, then you have layers, and then you have pages। तो आप इनको क्लिक करें और आप इन पे देख सकते हैं। डिफॉल्ट लेयर अभी दिख रहा है क्योंकि हमने डिजाइन शुरू नहीं किया। अगर इसमें लेयर्स ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आपका बहुत आसानी से हो जाता है। तो आई होप आप इन सब चीजों को यूज करेंगे। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग के बन के आता है और उसमें ये भी लगता है कि आपका कितना एफर्ट है, जबकि ये ऑलरेडी रेडीमेड स्टफ है और किसी को पता नहीं चलेगा कि ये आपने ये जो टेम्पलेट्स ऑलरेडी गिवन है इनमें इनको यूज करके बनाया है। तो आपका एफर्ट भी और आपका काम भी अच्छा दिखेगा और आप इसको कर सकते हैं। अरेंजमेंट की अगर बात आए तो आप इसमें डायरेक्शन और अरेंजमेंट ऑर्डर वो चेक कर सकते हैं, किसी इमेज को बैकग्राउंड में ले जा सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं। तो आपको पता ही है टेक्स्ट को फ्लिप कैसे करना है। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें हो जाती हैं। एक्स्ट्रा में देख लें तो अगर आपको मैथमेटिकल टाइप सेटिंग करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। देखिए कितनी सारी भाषाएं इसमें यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आप इन सभी लैंग्वेजेस में इसको चेंज कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को। ठीक है, लेट अस सी। इसमें बहुत सारी भाषाएं हैं जिसमें आप इसको चेंज कर सकते हैं। चाइनीज भी है, ये भी है, वो भी है। तो ये सारी चीजें आप इसमें कर सकते हैं। लैंग्वेज में ये सारी लैंग्वेजेस आती हैं, ऑटोमेटिक इंग्लिश है आपको पता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में आप इसको रीसाइज कर सकते हैं, मैथमेटिकल टाइप सेटिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल हैं, ये भी आराम से हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल से आप सब लोग इसको ट्राई करेंगे और इसमें आप डायग्राम को डिजाइन कर लेंगे। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, कैसे करना है मैंने बता दिया। अच्छा, दूसरा हम चलते हैं क्रिएटिवली, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए आप इस पे, ये देखिए इस पे बना सकते हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? यस मैम। यस मैम। ये देखिए आप इस पे टाइप करेंगे डीएफडी ड्राइंग टूल्स, ये आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे देगा। आपको जो सूटेबल लगता है, ल्यूसिड चार्ट भी आप देख सकते हैं, किसमें आपको कंफर्टेबल लगता है वो आप कर लीजिएगा। ये देखिए ये यूएमएल डायग्राम्स हैं, यहाँ से आप डायरेक्टली डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ये यूज केसेस दिए हुए हैं।
इस तरह से आप बना सकते हैं। तो आपको यू हैव टू जस्ट स्टार्ट कैनवस। ये सब ऑनलाइन यूटिलिटीज है, तो आपको इसमें ये चिंता नहीं करनी कि मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना, कुछ नहीं करना। आप इनकी साइट पे जाइए और वहां पे डिजाइन को ड्रॉ करिए। जब आपका डिजाइन रेडी हो जाए, सही से बन जाए, आप उसको इंपोर्ट कर लीजिए या डाउनलोड कर लीजिए और उसको आप अप्लाई कर लीजिए अपनी पीपीटी प्रेजेंटेशन में। तो ये बात सबको समझ में आ गई। और जीरो लेवल कॉन्टेक्स्ट, देखो मैं आई एम नॉट रशिंग, मेरे को कोई जल्दी नहीं है कि आप जो है बहुत जल्दी जल्दी बहुत बड़े बड़े डीएफडीज बनाए, नहीं। मैंने सिर्फ इतना कहा कि आप जीरो लेवल को समझ लें, आप जीरो लेवल बना के दिखा दें। पर मेरे पास अभी तक एक भी असाइनमेंट नहीं आया कि आपने मुझे करके दिया हो कि मैम ये हो गया, जबकि जीरो लेवल मेरे ख्याल से सबसे इजी है। तो आप बनाएं और बना करके आप चाहे उसका फोटो खींच के व्हाट्सएप पे डाल दें कि मैम ये मैंने बना लिया, तो एटलीस्ट मुझे पता चले आपको समझ में आ रहा है ना। एटलीस्ट इतना तो सभी लोग कर सकते हैं ना। तो आप सभी लोग जो है डायग्राम बनाएं और उसको मुझे भेज दें। तो ये है क्रिएटली। विजुअल पैराडिम मैं आपको बता ही चुकी हूँ। विजुअल पैराडिम पे आप कर लीजिए, क्रिएटली पे आप, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोड होने में, अभी लोड हो जाएगा, जस्ट अ मिनट। बिकॉज ऑफ द नेटवर्क इशू थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन फिर ये आराम से हो जाएगा। तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। डन। तो मेरे ख्याल सबको समझ में आ गया कि क्रिएटली, आप लोग एक बार इसको चेक करिएगा। ये कुछ स्लो है आज, तो मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से नहीं दिखा पा रही हूँ। अच्छा, अब मैं इसी पे आ जाती हूँ, आपके विजुअल पैराडिम पे। ये देखिए, इसमें माय डॉक्यूमेंट का भी एक ऑप्शन है, जहाँ पे आप जो भी डॉक्यूमेंट शुरू करना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं, दैट ऑल्सो यू कैन डू। ठीक है, अभी वापस जाती हूँ मैं। अब इसमें देखिएगा, न्यू है, इसमें आपके पास में फॉर्म्स भी हैं, ये देखिए। तो आप ये फॉर्म्स भी डिजाइन कर सकते हैं, अगर आप कोई पर्टिकुलर फॉर्म डिजाइन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एजुकेशन का ही कोई एक फॉर्म डिजाइन करना चाहती हूँ, तो ये देखिए फॉर्म ऑलरेडी डिजाइन किए हुए रेडी है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस सिर्फ आपको चूज करना है एक फॉर्म का स्टाइल और उसको एडिट कर लीजिए और उसको काम में लीजिए। ठीक है, मार्केटिंग है, नॉन प्रॉफिट है, आईटी है, ह्यूमन है, ह्यूमन रिसोर्स है, सारे फॉर्म्स तो ऑलरेडी हैं यहाँ पर। यानी अगर अब आप जॉब के लिए भी अप्लाई करते हो और वहां भी आपको कुछ इस तरीके का करना पड़ता है, तो आपके लिए ऑलरेडी यूटिलिटी है, वहां पे आप बनाइए, अच्छे अच्छे फॉर्म्स बनाइए और जो है आगे उसको फॉरवर्ड कर दीजिए। ठीक है, सबको समझ में आ गए ये दो टूल जो मैंने आपको बताए हैं, एक तो क्रिएटली और दूसरा विजुअल पैराडिम। आप प्लीज इसको ट्राई करें और मुझे एटलीस्ट जीरो लेवल से शुरू करें, जीरो लेवल डायग्राम्स बनाएं, एंटिटीज आपको पता है, डेटा स्टोर्स आपको पता है, उनको यूज करें, सिस्टम को सेंटर में रखें जो भी सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप सुपर मार्केट कर रहे हैं, तो आप सुपर मार्केट मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बीच में लिखें, वो आपका ये सिस्टम हो गया। एब्स्ट्रैक्शन है, हम उसमें डिटेल दे नहीं रहे। फ्लो ऑफ डेटा जो आ रहा है उसमें एरोज टूवर्ड्स दी सिस्टम होंगे, यानी कि जो सिस्टम आपने सेंटर में रखा, और कुछ उसमें एरोज बाहर निकालिए जिससे कि ये पता चले ये आउटपुट्स आ रहे हैं। तो जो भी आउटपुट्स आपको लगता है कि आपके सिस्टम के हैं, वो आउटपुट्स उसमें आप दिखा सकते हैं बिना किसी चीज की नॉलेज दिए हुए। सिर्फ आप नाम दे सकते हैं कि ये पर्टिकुलर सिस्टम ये प्रोड्यूस कर रहा है। अब मेरे ख्याल से जीरो लेवल में तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। नेहा, आपको समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, तो ये इतना मुश्किल नहीं है, आप एक बार बना के दिखाइए, फिर मैं उसमें करेक्शन करती हूँ। ठीक है, अगर कोई करेक्शन होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी, मगर एक बार आप ट्राई तो करिए। आप अगर आप ट्राई नहीं करेंगे, देखिए डीएफडी वाला जो एरिया है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डीएफडी सबको बनानी आनी चाहिए, और अगर आप ट्राई नहीं कर रहे हैं तो आप प्रॉब्लम में आने वाले हैं बड़ी जल्दी, क्योंकि जो क्वेश्चंस होंगे, जो मैं क्वेश्चंस आगे भी देने वाली हूँ या असाइनमेंट देने वाली हूँ, वो सारे इस तरीके के बेस्ड होंगे जिसमें आपको किसी टूल पे भी काम करना हो सकता है,
या आपको बाय हैंड भी स्केच करके देना हो सकता है, फिर कैसे बनाएंगे? तो इट इज बेटर कि आप प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, सभी लोगों के लिए बोल रही हूँ मैं, नॉट ओनली फॉर नेहा। नेहा के लिए तो वो तो कर ही रही है, दैट्स व्हाई शी इज डिस्कसिंग, मगर बाकी सारे लोग कि इसको हमें करना है। ठीक है, ओके। अब यहाँ से ये देखिए, ये सारे कैटेगरीज हो गए। मैं आपको एक टैबुलर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये आपके, ये देखिए, जस्ट आई एम चूजिंग एजेंडा। ये देखिए इसमें कुछ टेबल्स जनरेट हो रही हैं टैबुलर में। तो अगर आपको कुछ टैबुलर फॉर्मेट चाहिए तो आप इस तरह से टैबुलर में जाकर के कुछ टैबुलर फॉर्मेट्स यानी कि कुछ टेबल्स को जनरेट कर सकते हैं, जिसमें आप अगेन, जैसे मैंने बोला कि हेडिंग्स को चेंज कर सकते हैं, आप सभी कुछ कर सकते हैं। उसको रीयूजेबल बना सकते हैं, अपने हिसाब का बना सकते हैं, अपनी स्टाइल का बना सकते हैं, और फिर उसको यूज कर सकते हैं। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. अब ये लोड हो रहा है, मैं देखती हूँ। अभी दिख जाएगा आपको, लोड हो जाएगा तो एक फॉर्मेट जनरेट हो जाएगा। तो विजुअल पैराडिम जो आज आपने सीखा है, ये देखिए। अब बताइए, इसमें सब कुछ तो बना बनाया मिल गया है। मैं एक टेबल बनाने के लिए बच्चों को बोलती हूँ, कभी प्रियांशु को कहती हूँ, प्रियांशु एक टेबल मुझे भेज देना जिसमें ये करना है। तो आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं, डेटा बस केवल इसमें डालना है। अब ये स्टार्ट और एंड की जगह आप चेंज कर सकते हो। ठीक है ना? ये देखिए, ये सब टेबल के कॉलम्स है, जनरल एंड ऑल। ये देखिए, नंबर, जनरल, इनको सबको चेंज कर सकते हो, आप टाइप भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो वही एक एक्सेल शीट की तरह से, अगर आप नहीं करना चाहते हो उसमें और डायरेक्टली ऐसे चूज करना चाहते हो, तो आप बस यहाँ पे नाम बदल दीजिए, ये आपका अपना फॉर्मेट बन जाएगा। आराम से आप इसे यूज कर सकते हो। तो मेरा ये सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार विजुअल पैराडिम को देखें और मुझे इसको प्रैक्टिस करके बताएं कि इसमें आपने क्या क्या बनाया है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आपका जो आपका जो असाइनमेंट है वो मैं दे चुकी हूँ, और उस असाइनमेंट को आपको करना है। डेट भी मैंने दे रखी है, प्लीज चेकआउट, और टाइमली उसको जमा कर दें, क्योंकि फिर आपके मार्क्स का इशू हो जाता है। सभी लोग ऐसा कर दें। ये जो मेरी पीपीटी है एक, जो कि मैंने आपको नहीं दिखाई, बिकॉज आई वांटेड कि पहले मैं आपको डेमो दे दूं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊं। तो वो जो पीपीटी है मैं आपको भेज रही हूँ, ताकि आप डीएफडी के बारे में सब कुछ अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्लास में जब आप आए तो आपके कॉन्सेप्ट कुछ और ज्यादा क्लियर हो, कि जीरो लेवल समझ में आ गया, नाउ लेट्स मूव टू लेवल 1। तो आज के लिए मैं अभी यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ क्लास को। ठीक है, इसको शेयर को स्टॉप कर रही हूँ, 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, so till we meet, thank you so much for joining my class.